Dear friends, yesterday I had a terrible day. I'm working something like 100 kilometers from here. I stay in Bibinagar. You can see the beautiful nature all around. Nature, that is the Nani city, which is developed by one of the greatest Indian patriot, Colonel Ranga Rao, and his worthy and noble son, Mr. Gokul. I stay here. But one great man of India has given the opportunity to serve thousands and thousands of people for emergency care in Medchal district, GBK Malari. I always travel from here to there. But yesterday I had a desire to go to Banjara Hill Road number 1 to meet the great man of India, Manav Ratna, Dr. G.V. Krishna Reddy. I started at 2 o'clock. I reached there at 4 o'clock. 2-hour journey because the roads were so much crowded. It was looking like that I am in the den of the forest where trees and trees and trees, or I am in the hornet's nests, or I am the nest of the ants. Why? Because the population has grown so much. It is so thickly populated places in India, there is tremendous growth of population. But all the petty politicians, selfish, greedy people, they want more and more numbers of the people, but they have not planning to give them job, to educate them, to give them the best training how to behave properly. Whenever driving, there was chaos on the road. Zigzag, scooterist, car drivers, everyone wanted to knock me out and hit me. I appeal to my beloved Prime Minister, Honorable Narendra Modi, and those who love Mother India. Your prime duty is to control the population. We don't want numbers. We want quality numbers. Educate them. As you are planning your financial resources, budgeting, similarly budget your time, energy with the population. How many people you want? That many production can be done by the parents. Otherwise, the billions and billions and billions, India can single-handed become 10 billion people, and then they will kill each other, they murder each other. The crooked, foolish citizens of India, they will fight with each other as they are doing Mamata Banerjee, Mayawati, Sonia Gandhi, and so many such kind of cruel criminals who are aligning with the foreign forces to destabilize India. These can be crooked citizens who will create. They will make lame excuses. They want power. Power for what? Come to power. Reign the country. Deprive the worthy citizens from the basic needs, food, shelter, clothes and job. Dear Narendra Modi, can I call you my best friend? And for this you have to really become great man of India. Plan the population. Population is a big problem. This is a threat to the national growth. Many hands and many mouths cannot be supplied with sufficient basic needs. Then what they become? Terrorists, criminals, rapists. If you survey the states where there is population like 24 crores, 15, 20 crores, what is happening there? Murder, rape. Please, I am a patriot. Every citizen of India should realize this. India can be strong when strong-minded people with love, affection, kindness, compassion. वसुधैव कुटुम्बकम् आत्मा सर्वभूतेषु सर्वभवन्तु सुखिनः. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. बट किसका साथ, किसका विश्वास, किसका विश्वास और किसका विकास? क्या ये गुंडे, लुच्चे, लफंगे, इलिटरेट, बदमाश, शैतान? अरे अच्छे लोगों का साथ, अच्छे लोगों का विकास, तभी देश महान बनेगा. मोदी जी, विनम्र प्रार्थना करता हूं, मैं पॉलिटिक्स मानना नहीं चाहता. 2 दिन में मुझे उड़ा दिए जाएंगे बंदूक और तोपों से, क्योंकि यहाँ महापुरुषों के लिए कोई जगह नहीं है. पॉलिटिकल मर्डर होंगे,
गुंडे बदमाश शैतान आके मार डालेंगे हमें, लेकिन मैं चाणक्य की तरह, देशभक्त की तरह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरह और उपाध्याय की तरह आपको मार्गदर्शन करूंगा। डरिए मत, डरिए मत। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष बोस, वो हमारे आदर्श हैं। उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। हम रहे न रहे, भारत माता रहे और भारत माता की सरजमीन पर देशभक्त हो। हर बहन और भाई हमारे बच्चे हैं, बेटी और बेटे हमारी घर की संतान है। जब हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं तो क्या हिंदुस्तान में रहने वाले भाई बहन, बेटी बेटे हमारे नहीं हैं? तो क्या वो हमारे बच्चे गुंडे, लुच्चे, लफंगे, शैतान हो? सुना हूं गीता की शिक्षा दे रहे हैं, रामायण पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे चीज पढ़ाए जा सकते हैं जिसमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। लेकिन डर रहे हैं, डर रहे हैं लोग क्या कहेंगे। अरे सेकुलर, व्हाट सेकुलर, व्हाट सेकुलर। धरती पर रहने वाले सारे मानव जाति के लोग हैं। यहां कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, केवल इंसान होगा जिसके दिल में, धड़कनों में मानवता के लिए, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए प्यार होगा। जो जीता है इस पृथ्वी पर एक साथ मिलकर पर्यावरण सुरक्षित करते हुए, जो हमारे कमजोर है जीव जंतु पशु पक्षी, उनकी रक्षा करते हुए। अरे मैं तो अशोका जी ग्रेट हूं भाई। अगर धरती पर कोई भी सबसे बड़ा ज्ञानी हुआ, बताओ मोदी कौन था? वो था गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। कौन सुनता है उनकी बात? आप भी मोदी जी जब यूएनओ में जाते हो तो भारत माता का गौरव, गरिमा, तिरंगा को फहरा के बोलते हो कि हम उस देश के वासी हैं जो शांति की बात करता है, बुद्ध की बात करता है। तो बुद्ध को भूल क्यों गए भाई? बुद्ध के पद चिन्हों पर चलो ना। बुद्ध का मतलब होता है इनलाइटेंड। कौन सुनता है बुद्ध की बात? अशोक, जो मैं हूं सुना था, सुन रहा हूं, लेकिन ये फकीर बेसहारा बेचारा जंगल में रहता है। कौन सुनेगा मेरा? आप सुनेंगे क्या? तो पहला आदमी आप बनिए। बुद्ध के विचारों से जीव जंतु पशु पक्षियों, लाचार, अज्ञानी, मूर्खों, दुर्जनों का बेड़ा पार करिए। और तभी हो सकता है जबकि जनसंख्या कम हो और कोई जाति, धर्म, मजहब की बात नहीं करे, इंसानियत की बात करे। और इंसानियत कौन नहीं जानता है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही इंसानियत है। ये कभी बदलेगा नहीं। अरबों खरबों वर्षों तक रहेगा। सबको जीने का हक है, सबको खुशहाल होने का हक है, सबको साथ मिलके सहयोग से आगे बढ़ने का हक है। ये बदलेगा क्या? किसी ने इसको सनातन धर्म का दिया। बिल्कुल सच कहा, ये यूनिवर्सल रिलीजन है। ये स्वार्थ की राजनीति नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, आत्मसर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप जानते हैं नरेंद्र भाई, लेकिन मजबूर हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आपका समर्थन देने वाला हम हैं और हमारे जैसे जो देशभक्त हैं, जो भारत माता की गोद में और पृथ्वी पर पलने वाले हर भाई बहन हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन जो स्वार्थी हैं, ममता बनर्जी हो, मायावती हो, ऐसे बहुत सारे दुष्ट हैं जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, धर्म और मजहब के नाम पर देश को बांटते हैं। क्या भारत माता का खंडन नहीं हुआ? धर्म के नाम पर अधर्मियों ने हमारी भारत माता को तोड़ दिया। क्या करे भाई? डरिए मत, डरिए मत, समझाइए, बुझाइए। और जब सब हमारी तरह, आपकी तरह समझदार हो जाएंगे तो क्या समझाएंगे भाई?
क्या मुझे आप समझाएंगे? आपके समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, न मुझे आपको समझाने की जरूरत है। हम सबों को साथ मिलके अपने ही जैसे महापुरुषों को पैदा करें। फिर से अटल बिहारी हो, फिर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, फिर से बंदोपाध्याय हो, फिर से भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद हो, फिर से झांसी की रानी हो। तभी इस देश का और दुनिया का कल्याण होगा। आप सबों को सत नमन। मैं न किसी जाति का, न किसी धर्म का, न किसी मजहब का, इस पृथ्वी का एक पुत्र हूं और हर इस पृथ्वी के माताओं, बहनों, भाइयों, बेटी और बेटों को यही कहता हूं, 2 दिन की जिंदगी है भाई, कुछ ऐसा करके चलिए कि पृथ्वी पर शांति हो, विश्व शांति हो। और विश्व शांति लाने के लिए हम सबों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। ये किसी एक के हाथ से नहीं होगा। इसीलिए जनता को समझाइए सच्चाई क्या है। ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस, काइंडनेस, कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी। और हटा दो अपने दिल से ग्रीड, एंगर, हेट्रेड, जेलसी एंड सिनिकल थॉट्स। हमारे विचार ही हमारे जीवन को चलाते हैं। बुद्धिमान हुआ विचारों से, आप भी बन सकते हैं। धन्यवाद।